پیدائش کی کتاب اس کا 6واں باب ہے۔ چھٹا باب اور آپ اس کی پہلے 7ویں آیت کو ذرا پڑھیے گا۔ 7ویں باب کی 7ویں آیت، 7ویں باب۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اور خداوند نے کہا کہ میں انسان کو جسے میں نے پیدا کیا روئے زمین پر سے مٹا ڈالوں گا، انسان سے لے کر حیوان اور رینگنے والے جاندار اور ہوا کے پرندوں تک، کیونکہ میں ان کے بنانے سے ملول ہوں۔ بہت اچھا، اس کے بعد آپ پڑھیں ذرا 6 باب کی 8ویں آیت۔ مگر نوح خداوند کی نظر میں مقبول ہوا۔ نوح کا نسب نامہ یہ ہے، نوح مرد راست باز اور اپنے زمانہ کے لوگوں میں بے عیب تھا۔ نوح مرد راست باز اور اپنے زمانہ کے لوگوں میں بے عیب۔ اچھا، یہاں پر ہم سیکھیں گے only one person۔ خدا نے وزٹ کیا، خدا نے جب وزٹ کیا اور وزٹ کے دوران only one person اس کو نظر آیا جو اس زمانہ کے لوگوں میں بے عیب تھا، اور بے عیب ہونے کی وجہ سے، ایماندار ہونے کی وجہ سے وہ خدا کی نظر میں کیا ہوا؟ مقبول ہوا۔ اونچی بولا، خدا کی نظر میں کیا ہوا؟ مقبول ہوا۔ کیوں مقبول ہوا بھائی؟ کیونکہ وہ کیا تھا؟ راست باز تھا اور بے عیب تھا، یعنی اس دنیا کے جو عیب تھے اس دنیا کے عیب اس کے اندر نہیں تھے، ہے نا؟ اس دنیا کے جو عیب اس کے اندر نہیں تھے، اس لیے وہ خدا کی نظر میں کیا ٹھہرا؟ اب خدا نے حکم دیا کہ آپ، یعنی تو ان کے لیے کیا بنا؟ تو ایک کشتی بنا اپنے گھرانہ کے لیے۔ کس کے لیے؟ اپنے گھرانہ کے لیے کشتی بنا۔ اور میں یہاں پر کہوں گا، پہلی بار نوح نے ذمہ داری کو قبول کیا ہے۔ نوح نے ذمہ داری کو کیا کیا؟ جب پروجیکٹ دیا گیا، ایک بڑا پروجیکٹ ہمیں نظر آتا ہے، اور یہ فیملی پروجیکٹ ہے جس میں ساری فیملی نے مل کر کام کرنا تھا۔ اور یہاں پر میں صرف پروجیکٹ پر بات کروں گا کہ آپ اور میں اپنے اپنے گھروں میں رہتے ہیں، ہو سکتا ہے ہمارا گھر 2.5 مرلے کا ہے نا، ہو سکتا ہے ہمارا گھر رینٹ کا ہو سکتا ہے ہمارے پاس رینٹ کا گھر تو ہے لیکن اس کے ساتھ ہم نے ایک پلاٹ خرید لیا ہے۔ اب اگر ہم رینٹ پہ رہتے ہیں تو ہم نے ایک پروجیکٹ پر کام کرنا، وہ ساری فیملی نے مل کر، وہ کیا ہے؟ شاباش، پروجیکٹ تیار کرنا ہے، اپنا گھر لینا ہے۔ شاباش، اپنے گھر کے لیے آپ کیا کریں گے؟ جاب کروں گی، پیسے کماؤں گی، ہے نا؟ سیونگ، یہ پیسے کمانا اچھی بات ہے، آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ۔ اور کیا ہوگی؟ سیونگ، اور کوئی اور محنت کریں گے۔ شاباش، اور کوئی بات؟ سب سے پہلے ہم خدا کے حضور دعا کریں گے کہ خدا ہمیں طاقت دے تاکہ ہم اس کام کو اچھے طریقے سے کریں۔ ہاں، یہ بھی اچھا ہے۔ اچھا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ وداؤٹ خدا بھی ہم ترقی کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اگر میں آپ کو حوالہ دوں پھر دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، انہوں نے کہا آؤ ہم کیا بنائے؟ بت بنائے۔ آپ پادری صاحب حیران ہو گئے تو میں نے کہا حوالہ بتا دیں، اس سے پہلے آپ زیادہ حیران ہو گئے۔ ان کے اندر لکھا ہے کہ انہوں نے کہا آؤ ہم کیا بنائے؟ خدا کو تو نہیں پوچھا بھائی خدا شامل تو نہیں ہے، بھائی خدا کی صفت تو ان کے اندر تھی نا، ہے نا؟ انسان کے اندر کام کرنے کی صفت ہے، یہ خدا نے دی ہے۔ اس کا مطلب انہوں نے خدا کو شامل نہیں کیا اور یہ کہا آؤ ہم نام پیدا کریں، نام بنائیں۔ بھائی اگر اپنا نام بنانے کے لیے انہوں نے برج بنانا شروع کر دیا تو خدا پریشان ہو گیا۔ اب خدا نے کہا کہ انہوں نے کر لینا ہے۔ خدا کو پتا تھا اپنے بنائے ہوئے لوگوں کا، خدا کو پتا انسان کی خوبیوں کا کہ انسان یہ کر سکتا ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ یہ کر سکتے ہیں، لیکن آج بہت سارے لوگوں کا دماغ ان کو دھوکہ دے سکتا ہے، نام ابلیس کا لگا دیتے ہیں، ہے نا؟ نہ شیطان دا لا دیندے نے تو دماغ ساڈا دھوکہ دے رہا ہے۔ کئی دفعہ ہم کہتے ہیں، ہمارا دماغ کہتے ہیں آج نہیں کل کر لیں گے۔ بھائی مجھے بتائیں، یہ شیطان کہتا ہے آپ کو؟ یہ آپ کا دماغ ہے،
कई दफा ये दिमाग हमें बड़ों से मिला होता है, आज नहीं कल। हमने नूह की तरह खुदा के हुक्म की ताबेदारी करनी है और जिम्मेदारी कबूल करनी है। और जिम्मेदारी इसने क्या कबूल किया? एक कितना बड़ा प्रोजेक्ट लिया और इस पर काम करना शुरू कर दिया। इसमें पहली बात जिम्मेदारी नजर आती है और उसने उस जिम्मेदारी में अपनी फैमिली को भी शामिल किया। आज बहुत सारे नौजवान मैंने देखा है हमारे क्रिश्चियंस के अंदर, बहुत सारे नौजवान जो घरों में वेले रहते हैं, कहते काम नहीं मिलता, काम नहीं मिलता, काम तलाश करेंगे नहीं मिलता। मैं आपको इसका तजर्बा बयान करूं। मैं जो 5th क्लास के एग्जाम दे के मैंने ग्रीन मार्केट सब्ज मंडी पल्लेदारी शुरू की थी, और जब पल्लेदारी मिस हो जानी, उधर से मिस होना, मैंने कहा मैंने काम की तलाश में मजदूर अड्डे में खड़ा हो गया। मजदूरी खुदा ने दी है। जब आप इरादा करते हैं तो आपके मजबूत इरादे के सामने कोई चीज़ ठहर नहीं सकती। हमारे घरों में बरकतें की ना होने की वजह यह है कि दुआ तो बड़ी करने हैं पर काम को नहीं करते, मेहनत करना पसंद नहीं करते। घर में मंजी तोड़ना पसंद करते हैं ना, मंजी पे चारपाई पे लेटना पसंद करते हैं। लेकिन मुकद्दस नूह ने अपनी जिम्मेदारी को क्या किया? आज क्या नौजवान जिम्मेदारी कबूल करते हैं काम करने की? हम अपने घरों में अपनी जिम्मेदारी को क्या करें? पूरा तो कर नहीं रहे भाई। पूरी फैमिली की जिम्मेदारी है कि वो प्रोजेक्ट पर काम करें। नूह के लिए प्रोजेक्ट ये था, उसने कश्ती बनानी है। आज हमारे लिए प्रोजेक्ट ये, हमें अपने घर को निजात याफ्ता बनाना है। आमीन। क्या हम अपने घर को निजात याफ्ता बनाने के लिए काम करते हैं? क्या हम अपने घर को अगर रेंट पे हैं तो अपने घर में आने के लिए काम करते हैं? क्या हम सेविंग करते हैं? क्या हम प्लान करते हैं? हम अपने घर के बजट को प्लान करते हैं? मुझे याद है कि एक घर में मैं गया तो उन्होंने अपनी किचन में एक वाइट बोर्ड बनाया हुआ था और उस वाइट बोर्ड पर सारा बजट लिखा हुआ था कि हमने घर का बजट कैसे कैसे चलाना है और इस महीने हमारे घर का बजट कैसा है। पूरे घर के बजट को डिजाइन करते हैं। तो हमारे मसीहियों का प्रॉब्लम क्या है? पर जड़ा आधा आज तक खाना अगली बारी देखा जाएगा, है ना? आज तक कुकड़ कढ़ाइयां चाहिए ना, बाद च वेखांगे की होना। लेकिन याद रखिए हमने प्लानिंग करनी है, हमने प्लानिंग के साथ प्रोजेक्ट पर काम करना है। अगर तो आप तरक्की करना चाहते हैं तो याद रखिए पहली शर्त यह है कि आप रेगुलर कलाम पढ़ें। कलाम हमारे लिए रहनुमाई का काम करता है। हमें तो मैं ये भी कहूंगा कि आपने आपसे क्या शुरू करें? खुदावंद मुझे बोलने की हिकमत दे, खुदावंद मुझे सुनने की हिकमत दे, खुदावंद मुझे खाने की हिकमत दे, खुदावंद मुझे पीने की हिकमत दे। देखा ना कई लोगों को खाने के मैनर्स नहीं होते। देना 500 तो डाड़ा 5000 था। खाने के मैनर्स, इसलिए मैं कहता हूं कि खाने की हिकमत की दुआ करें, बाइबल पढ़ने की हिकमत की दुआ करें, चर्च जाने की हिकमत की दुआ करें, घर चलाने की हिकमत की दुआ करें, सफर करने की हिकमत की दुआ करें। जब इस तरीके से आप दुआ करेंगे तो आप फिर काम करना शुरू करें। तो नूह की तरह पहली जिम्मेदारी को कबूल करना है कि खुदावंद हम जिम्मेदारी को क्या करते हैं। आज बहुत सारे लोग चर्च की जिम्मेदारी से भी भागते हैं, है ना? बहुत सारे लोग टाइम पर चर्च आने से भी भागते हैं। बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ने की जिम्मेदारी से भी भागते हैं। बहुत सारे लोग दुआ करने में एक जिम्मेदारी खुदा ने दी, बिला नागा क्या करो, बिला नागा टिकटॉक तो जरूरी है, बिला नागा स्टेचर तो जरूरी है ना। माया वाली गल क्या कहते हैं, पुत्र बिना आज भी स्टेचर लाए कि नहीं, है ना? मैं स्टेचर के खिलाफ नहीं हूं, पर मैं ये कह चुका हूं कि आपका स्टेटस कम है, आपका स्टेटस ये है, आप शाही काहिनों का लड़का है। आमीन। यू आर रिच पर्सन नॉट पुअर। इसका मतलब आप अमीर लोग हैं, आप अमीर हैं, आप शाही काहिनों का लड़का है। काम क्या करना है? हमने नंबर 1 पर जिम्मेदारी को क्या करना है? कबूल करना है। और हम जितने हैं हमने अपने घरों में जिम्मेदारी को क्या करना है? कबूल करना है कि बिरले सुते रहना करना है। ये भी तो एक जिम्मेदारी है ना। एडी जिम्मेदारी है कि मंजी कह दी मनु नहीं झड़ना, है ना? क्यों सुनील?
इंज लगता है आकाश तो बहुत ही है ना जाना। आपने क्या करना है, आपने सीखना है कि मुकद्दस ने सारी फैमिली ने मिलकर क्या किया। देखिए जिम्मेदारी को क्या किया, कबूल किया। तो आज हमने क्या करना, जिम्मेदारी को कबूल करना। और फिर मैं इसके साथ ही कहता हूँ, अपना प्लान बनाए घर में। हमने प्लान नहीं बनाया अपने घर का कि हमने कमेटियां कितनी डालनी है। कई दफा कमेटियां ज्यादा होती हैं। मैं इसके बारे में ये कहूँगा पंजाबी जी के साड़ी इनकम जी है वो इन्नी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए। ते साढ़े चीज़ों का पंजाबी च जफा कितना होना चाहिए इन्ना। लेकिन प्रॉब्लम की है साड़ी इनकम साड़ी इन्नी तो ब्रांड साढ़े ब्रांड इतने होते हैं है ना। इन ब्रांड की वजह से हम प्रॉब्लम्स में आते हैं। अब ब्रांड खुदा पहनाएगा लेकिन उसका हुक्म माने, क्योंकि कलाम में क्या है, खुदा से मोहब्बत रखने वालों के साथ खुदा जो इंसान ने चीजें नहीं देखी होती खुदा वो भी क्या कर देता है, दिखा देता है। जो चीजें जुबान ने नहीं चखी होती वो क्या कर देता है, सिखा देता है। आप चखेंगे, खाएंगे, आप देखेंगे भी, खाएंगे भी और पहनेंगे भी। पर प्रॉब्लम ये है कि आप अपनी फैमिली की जिम्मेदारी को कबूल करें। हम अपनी जिम्मेदारी में प्लान बनाएं कि हमने एजुकेशन के साथ तरक्की कर सकते हैं। वैसे आप किन किन चीजों से खानदान तरक्की कर सकता है, आप बताएं। एजुकेशन, वेरी गुड। आप बताएं। कारोबार में इन्वेस्ट करना। एक मिनट इधर आने, हाँ, नौकरी करके, नौकरी करके भी हम क्या कर सकते हैं। और ठीक है जी, नौकरी भी हो गया, पैसा भी हो गया, जिम्मेदारी भी होगी। कारोबार में इन्वेस्ट करके, कारोबार में इन्वेस्ट करके तो हमारे बहुत सारे लोग पहले रोना रो रहे हैं, साडा कड़ा चल रहा है, पहले ही रोना शुरू कर देंगे, साडा कड़ा चलना है। केरा मत्थे ते रोड ते लिखा होना कि यू आर क्रिश्चियन, है लिखा मत्थे ते। हाँ ये तो आ नहीं इधर से आ जरा, है ना। या इस लैंग्वेज से आपका कोई अंदाजा लगाएगा। अदरवाइज तो आपको कारोबार करना चाहिए। छोटे छोटे भाई आप छोटे छोटे स्मॉल, मैं देखता हूँ इतनी सी टोकरी पतीसे के ऊपर रखे होते हैं सारे, हाथ में पकड़ा होता है, बाजार से दिहाड़ीदार है। मुझे बताएं इतनी सी टोकरी पर अगर उसकी नाम बनती तो वो कभी भी रेगुलर ना करता। छोटी छोटी जो गोलगप्पे वाली ठीक ठाक कमाती जाती है। आप मुझे बताओ, हमारे नौजवानों को सलोन का काम सीखना चाहिए। अच्छा, ऐसा हुनर है, यकीन माने बंदा पराडों से उतरता है और आके सलोन वाले के पास खड़ा होता है, कहता साहब मैं कटिंग कराने के लिए, भाई 2 कस्टमर बैठे हुए हैं और सारी उसकी जो पराडो है ना पड़ी हुई है रोड, है ना। उसका प्रॉब्लम यह है कि उसके पास हुनर है, हुनर के सामने भाई पराडो वाला आके कहता भाई अच्छा 2 कस्टमर कहता बैठ जाए, वेट कर रहा होता है। हुनर पराडो वाले को वेट करवा रहा है। अंदाजा कर, हमारे पास हुनर होना चाहिए। तो मुझे यूं लगता है कि नूह के पास हुनर था, है ना। खुदा ने कहा कि कश्ती बनाओ और कश्ती बनाना उसने क्या कर दिया, शुरू किया। तो फिर उसने अपनी फैमिली को भी लिया और उसने अपनी बीवी को भी लिया और बेटों को भी लिया और उसकी बहुआ यानी अपनी बहुओं को शामिल कर लिया। सारी फैमिली ने मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम किया, तब जाकर इतनी बड़ी कश्ती बनाई। और ऐसा कितना था वैसे 120 साल लगे, 120 साल। कितने साल, अंदाजा करें, इमेजिन करें आप 120 साल वो कश्ती बनाते रहे। और ये 120 साल उम्र जो थी ना ये तब की थी, ठीक है ना। ये 120 साल उम्र उस वक्त मुकर्रर की हुई थी। आप अंदाजा करें सारी फैमिली ने 120 साल तक वर्क किया। आज हम करते हैं क्या, हमने अपनी फैमिली को रेंट में से निकाल कर अपने घर में नहीं लेकर आना, क्योंकि हम छोटा सोचते हैं, हम छोटी छोटी सोचें रखते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि हमने बड़ा सोचना है, क्योंकि आपका यीशु बड़ा है। आमीन। आमीन। हालेलुया। मार लो ताली का दिल कर रहा है। आज नौजवान जो है, मैं ये कहूँगा स्पेशल नौजवानों से कि अपनी एजुकेशन पर फोकस करें।
अपनी जिम्मेदारी को समझे अपने घर में कि आपने अपनी जिम्मेदारी को समझना है कि आपने मेहनत करनी है। आप बेटियां मेहनत करें, घर में बैठकर आप स्किल्स सीखें। बहुत सारे घर में बैठकर ही आप काम कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा अपनी फैमिली के लिए मिलकर काम करें ताकि आपका घर अच्छा हो, आपकी चीजें। भाई मुझे बताएं, ये सारी कायनात खुदा ने किन के लिए बनाई थी? जी बोलो, क्या डरना नहीं, किन के लिए थी? उन्हें दसो गड्डियां के लिए खुदा ने बनाई है ना? गाड़ियां किन के लिए बनाई है? तो पहुंच क्यों नहीं? क्योंकि हम मेहनत नहीं करते। क्योंकि हम क्या करते हैं? मेहनत करेंगे तो आ सकती है ना? फादर यूसुफ भट्ट साहब के पास भी गाड़ी है। अब मैं ये नहीं कहूँ कि जिनके पास गाड़ी है उनसे खुदा प्यार नहीं करता। बस मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैंने 6 दिन का रोजा रखा। मैंने कहा खुदा हमारे लोगों के पास अपनी गाड़ी है, उसके बाद 20 गाड़ियां मेरे दोस्तों के पास आ गई, है ना? भाई ये हो सकता है, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं, लेकिन ये उस वक्त होगा जब हम सारी फैमिली मिलकर प्लानिंग करेंगे। आज से अपने घर में एक रजिस्टर लें और प्लानिंग करें, बजट बनाएं, हमारे घर की इनकम कितनी है और खर्चे कितने हैं। और अगर आपके घर का खर्चा ज़्यादा है तो आप खर्चे कम करें। किन किन चीज़ों में आप खर्चा पैसे बचा सकते हैं। यानी अगर ज़्यादा आप सेविंग करेंगे, ज़्यादा आप चीज़ों को बजट में लेकर आएंगे तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पर हमारे फजूल खर्च हो रहे हैं, और वो फजूल खर्ची भी आप क्या करें, खत्म करें। 120 साल ये सारे लोग कश्ती बनाते रहे तो तैयार सारी चीज़ें, कील मटेरियल कहाँ से इन्होंने इकट्ठा किया? सारी फैमिली ने मिलकर मटेरियल क्या किया, जमा किया, और साथ साथ में वो करते रहे, कश्ती बनाते रहे। नंबर 1 पर आज आपने अपनी जिम्मेदारी को कबूल करना है। नंबर 2 पर आपने काम करना है, जैसे नूह ने किया और उसकी फैमिली ने किया। आज बहुत सारे लोग काम भी नहीं करते। मेहनत करनी है, काम करना है, जिम्मेदारी को कबूल करना है। जब आप इस तरीके से घर में बजट बनाएंगे और काम करेंगे, मेहनत करेंगे, मुझे बताएं अगर एक दिन आप घर में वेस्ट कर देते हैं ना, मेहनत नहीं करते, तो उस दिन का बजट आप छुट्टी तो जो रेगुलर हमने वीक में मिलती है वो तो करते हैं, अगर आप उनमें से एक्स्ट्रा करते हैं तो उससे घर का बजट क्या होता है? क्यों भाई साहब? खराब होता है नहीं? कई दफा घर से वेख के परौने याद आते हैं। आप घर में अवेलेबल हो ना तो आपको कॉल करे तो आप झूठ तो नहीं बोले, कहेंगे आप कहाँ है, कहीं घर है, कहेंगे आ रहे हैं बताड़े, है ना? बजट हो गया ना खराब। बहुत सारी चीजों में इस तरीके से भी हमारा बजट जो है वो खराब हो रहा है। क्रिश्चियंस को तरक्की करना चाहिए। ये पाकिस्तानी क्रिश्चियन पीछे हैं, पूरी दुनिया के क्रिश्चियन आगे हैं। आमीन। और आप भी कर सकते हैं, और ये तब होगा जब आप अपना जहन बनाएंगे मेहनत करने के लिए, चीज़ों को प्लान करें कि हमने अपने घर को गुर्बत से क्या करना है, निकालना है। गुर्बत आप तब ख़त्म कर सकते हैं जब आप मिलकर प्लान करेंगे, नूह की तरह काम करें। और नूह की इस एक्ट की वजह से सारी फैमिली क्या हो गई है, बच गई, महफूज हो गई, और बाद में सारी प्रॉपर्टी नूह के फैमिली को मिली थी, है ना? सारी प्रॉपर्टी किनको मिली थी? पूरी जमीन के मालिक बन गए। भाई देखिए हैरानी की बात है। अगर वो काम ना करते तो कश्ती में महफूज ना होते, अगर वो मेहनत ना करते तो वो कश्ती में महफूज ना होते, अगर वो हुक्म ना मानते तो वो कश्ती में महफूज ना होते। इसका मतलब हुक्म माना, जिम्मेदारी को कबूल किया और काम भी किया, कश्ती भी बनाई, और उसी कश्ती में वो क्या हो गए, महफूज हो गए। और महफूज होने के बाद खतरात भी है, हालात भी खराब है, लेकिन वो कश्ती में महफूज है। ये हो ही नहीं सकता नीचे से भी पानी हो, ऊपर से भी पानी हो, और वो कश्ती महफूज रह सके। मुझे आपको याद है ना कि अमीर पर्सन अपने बेटे के साथ नीचे समुद्र में गया टाइटैनिक देखने के लिए, है ना? बच गए वो? नहीं ना बचे? तो मुझे ये बताइए, ये तो समुद्र से भी ज्यादा प्रेशर था, जो ऊपर से भी पानी है और नीचे से भी। शायद पत्थर लग लग के टूट टूट कर वो कश्ती के साथ लगते होंगे, है ना? जब दरख्त तूफान आया होगा, दरख्त बड़े बड़े दरख्त टूट कर वो कश्ती के साथ क्या होंगे, लगते होंगे, टकराते होंगे, लेकिन ना तो कश्ती के दरवाजे को तोड़ सकी, क्योंकि दरवाजा खुदा ने बंद किया था, खुदा के बंद किए को कोई खोल नहीं सकता। आमीन।
اور خدا کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا. اس لیے کیونکہ دروازہ خدا نے بند کیا تھا اور وہ سارے کشتی میں کیا ہو گئے؟ محفوظ ہو گئے. اور محفوظ اس لیے ہوئے تھے کیونکہ انہوں نے خدا کا حکم مانا تھا, ذمہ داری کو قبول کیا تھا. آپ اور میں محفوظ ہو سکتے ہیں, بچ سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے ہم نے ذمہ داری کو قبول کرنا ہے, ہم نے کام کرنا ہے, محنت کرنی ہے. آپ کی شاید فیملی غربت سے بچ سکتی ہے, مشکلات سے بچ سکتی ہے, دنیا کے طوفانوں میں سے بھی بچ سکتی ہے. حالات بھی خراب ہو جائیں گے لیکن آپ کی فیملی میں اگر خدا ہوگا, آپ نے خدا کو دعوت ہوگی تو آپ محفوظ ہوں گے. اور اس کے بعد یاد رکھیے وہ جب کشتی میں سے نکلے ہیں اور نکل کر ساری پراپرٹی انہوں نے خدا نے دی. اور یہ اس وقت ہوا نکلتے ہی پراپرٹی کی طرف توجہ نہیں, نکلتے ہی خطرات سے پہلے خدا کے لیے مذبح بنایا گیا. آمین. پہلا کام کیا کیا ہے؟ تو ہم کیا کرتے ہیں پہلا کام؟ کئی دفعہ ہم یہ چل پہلے ہوں ادھر سے پہلے جائیے نا تو پھر اگلے کام کرائیں گے, ہے نا. لیکن وہ سب سے پہلے نکلے اور نکل کر خدا کے لیے مذبح بنایا, کیونکہ وہ جانتے تھے جس خدا نے خطرات سے محفوظ رکھا ہے, رائٹ بنتا ہے پہلے اس کو درجہ دیا. اور اس کے اس عمل کی وجہ سے کیا ہوا, خدا نے کہا اس کے بعد میں دوبارہ اس طریقے سے دنیا کو ہلاکت نہیں کروں گا. اگر وہ ایسا نہ کرتے تو شاید پھر ہلاکت ہو سکتی تھی. اس لیے آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں.